हरि ओम तत्सत। राधे 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 राधे। आज राधा अष्टमी भी है, फादर्स डे भी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, फीजी में, सब तरफ, लेकिन अमेरिका में नहीं है फादर्स डे केक भी है काटना। अच्छा, केक भी काटना, लेकिन फादर्स डे सब दिन होना चाहिए। लेकिन जिसका समय नहीं सब दिन मिलता, एटलीस्ट साल में एक दिन मिल जाता है, तो वो भी अच्छा बात है। अच्छा, अच्छे समय निकाल के हम आज राधा माँ को सबसे पहले याद करते हुए और कृष्ण भगवान पितामह को याद करते हुए, माता पिता आप सबको याद कर लें। अपने think of your loved ones, your near and dear ones. When you think about them, bring them mentally to sit with you. They will receive the same blessings as you are receiving. Pray for everyone, no matter how far by distance they are. They come here near, sitting in the laps. So they become part of the Bhagavatam. So take a second to think of your loved ones, no matter how far. Bring them, let them sit near you, and ground yourselves. Without grounding, मन चंचल है. Monkey mind keeps running here and there. So let us ground ourselves, touch Dharti Ma and do pranams, so that we are in the present moment. Put, just like we put our shoes outside when we enter the temple, when we enter our homes, put all the thoughts outside. Shelf it, just say, if the thought comes, just say, I'm busy with my appointment with God. I'll deal with you later. So with these prayers, we'll begin with 3 Oms. Welcome each one of you who have come here, very dedicated to be here. Maybe some will come a little later, or there are many listening to us, are with you online. So all of you know that we are online on the Facebook, and if by chance your pictures come there, if you don't want, then don't come in front of the camera, please. Let us know. And let us know also that you don't want your picture to come there or your video taken on live, because this time is crucial for us to get, because then many are not able to come, but they are benefiting, and in return you are getting blessings for having this Bhagavatam with deep, heartfelt आत्म प्रणाम्स आप सबको जो मेहनत करके आज यहाँ पहुँचे हो. It's not easy, but this is what it is, the cream. The whole milk cannot be turned into butter. So कुछ छाछ रह जाता है, कुछ कैसे बटर कम निकलता, घी कम बनता है. तो आप सब घी है, यहाँ पर आ गए हो भागवत सुनने के लिए. आप सबको आत्म प्रणाम. All of you online, pranams to you also with heartfelt welcome. Thank you for joining us, and may Lord Krishna and Radha Ma bless you in abundance. Let's begin with 3 Oms.
नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय गोविन्दाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। Adorations to the divine preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru, we offer our adorations. Hari Om Tat Sat. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of Pujya Gurudev, Pujya Sri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj of Yoga Research Foundation, Miami, Florida. To our Param Gurudev, Pujya Sri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India. To the Jagat Guru, Bhagwan, the world teacher, Bhagwan Adi Shankaracharya Ji, our humble Sashtang pranams. Pranams to Bhagwan Shri Ved Vyas Ji and to Bhagwan Shri Shukdev Ji, because of whom we have this Srimad Bhagavatam. So many years after that, we are still having this scripture with us. Pranams to all saints and sages of the entire world, wherever they are, our humble pranams. With this, I will read Gurudev's message for today. Blessed Self, adorations. Elevate your mind by good association. What does good association mean? Sat Sang. सत्य लोग तो सत्य होते हैं जो आते हैं भगवान में लीन है सत्य, लेकिन the truth is our scriptures. The truth is God. There is only one truth, that eternal Brahman.
and we are all associated and listening to that truth. There are many saints and sages. There are many paths. There are many ways of delivering that truth. But that truth is the same, the one, no changes. Like water, pani, jal, different languages, but the water is the same. No difference. It may be a little dirty, it may be a little cleaner, but that's still water. So that is the truth. Many scriptures, but the truth. That supreme consciousness. So elevate your mind by good association, satsanga, study of scriptures, good deeds and prayer. Lots of duties here for us. Do not entertain thoughts of grief, fear, humiliation, you are not this passing personality. Someday this, someday that, someday we cry, someday we laugh, someday we are angry. It's this passing phase. We are not this passing personality. We have to remind ourselves. अपने आप को याद दिलाना कि हम ये गुस्सा करने वाले नहीं हैं, रोने वाले नहीं हैं, हंसने वाले नहीं हैं. We have to remind ourselves. We are not this passing personality. Then what are you? You are the immortal self. सर्व व्यापक, eternal, immutable आत्मन. हम आत्मन हैं. That is the truth. This body is a passing phase. आज है, कल नहीं रहेगा. और इसके ऊपर हम इतना ध्यान देते हैं, इसको इतना सजाते हैं कि भगवान को भूल के, वो आत्मा को भूल के, we forget about the soul and we decorate this body which is limited. Limited body को इतना हम सजाते हैं, लेकिन इसको कब सजाएंगे? जो सब दिन के लिए है, हमें उसको ज्यादा सजाना चाहिए. So as you move towards that part where you are feeding your soul more, that means you are on the positive path. So that remind yourselves that this is what we should do. ऐसे नहीं आ जाता है, practice करना पड़ता. Nothing comes without practice. In teaching, the world of this ego is like a drifting cloud in the vastness of the self. एक बादल जो भागता रहता है, उसकी तरह ये दुनिया है. आज ये, कल वो, ये करना, वो करना, ये चलता रहता है. Turn your steps from desire to desirelessness. इतना हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना. अच्छा, जो पॉजिटिव है वो तो बड़ा अच्छा है. कभी कभी थोड़ा हम ज्यादा कर जाते हैं, तो उसको हमें समझाना पड़ेगा. अपना माइंड, मन इज माइंड, मन को समझाना पड़ेगा और हृदय को समझाना पड़ेगा. मुझे ये चाहिए, यही साड़ी चाहिए, यही कपड़ा चाहिए, यही ज्वेलरी चाहिए. देखा हुआ तो यही घूमता रहता है कि जाना है, लेना है, पैसा बटोरना है. तो क्या है, एक और जॉब लेना है और करना है, ये घर लेना, वो घर. हम थोड़ा सा, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि वो आज है, कल नहीं रहेगा, साथ नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिए. कि इसीलिए हम संन्यास थोड़ा कम, एक ही तरह का वस्त्र 2-3 तरीका का पहनते रहते कि समय नहीं बर्बाद हो, इजी हो जाता है लाइफ. So turn your steps from desire to desirelessness, from
craving, ये खाना वो खाना ये, from craving to the fragrant blooms of contentment. Fragrant blooms of contentment. जब वो हो जाता है तो craving भागता रहता है, because वो आ गया ना, contentment हो गया अंदर कि ना इतना ही बस है. From degradation to the heights of infinite glory. जो निचले के तरफ ले जाता है उसको छोड़ दो. समझ जाओ कि ये मुझे घसीट के नीचे ले जाता है. जैसे तावा खुद जलता है पहले, तब फिर रोटी पकाता है. ठीक, तो ऐसे हमारे साथ भी होता है. जो विचार है वो पहले हमारे ऊपर पड़ता है, तब फिर दूसरे के ऊपर पड़ता है. जब हम किसी के बुराई सोचते हैं, we think bad about others, first it hits us and then it goes to the others. So क्या बोले, क्या सोचे, क्यों वक्त बर्बाद करे, ऐसे ही समझ ले. So discover your true identity and become blissful. True identity आत्मा. क्यों हम अपने कर्म को बिगाड़े? Why make a bad karma and then be born again? सब दिन ये कैसा कर्म है ये सोचिए. Think, is it a positive karma or a negative karma? तो गलती तो सबसे होता. क्षमा, हे प्रभु क्षमा, शक्ति दो कि हम ये विचार फिर से ना लाएं. तो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव की तरफ से may God bless you, दाइन स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज. तो ऐसे छोटे छोटे ज्ञान हम कंटेम्पलेट करके, मेडिटेट करके अपने जीवन में उतारे. दैट्स द लेसन कि हम ये करें. और अब हम भजन करते हैं. पहला भजन. थैंक यू वेरी मच. आप लोग बहुत सुंदर, खूब आशीर्वाद. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा.
पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता हरिओम। बहुत सुंदर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब साधु संतों को हमारा प्रणाम, और आप सब पधारे हुए देवताओं के हृदय में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इस मंडली को भी प्रणाम जो इतना आशीर्वाद सुंदर भजनों से हम सबको आनंदित करते हैं। तो ये अब एक घर नहीं है, कल हमने बताया ये वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहाँ पर भगवान का वास रहता है, जहाँ पर भी सत्संग रहता है, जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है, और भागवत जैसा उच्च कोटि के ग्रंथ का जहाँ पर रसपान किया जाता है, वो मंदिरों से तीर्थ स्थानों से कहीं ऊंची जगह बन जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। देखने में हम तो आते हैं, भोजन करके आनंद लेके रसपान करके चले जाते हैं, लेकिन जो यजमान होता है उसके लिए कई महीनों का कार्य रहता है, छोटे छोटे कई कार्य होते हैं। तो हम उसको समझते हैं और हृदय से इस परिवार को आशीर्वाद देते हैं, और इनके पूरा समस्त, और आप सब में भी जिंदगी में एक बार सबको भागवत अपने घर में करना ही चाहिए। छोटा बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना भी बन पड़े हम करें, चाहे थोड़े से भी लोग हों, क्योंकि उसको सुनने में और उसका आनंद लेने में इतना भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक पूरा हफ्ता, इसीलिए सप्ताह पारायण हम करते हैं। अगर वो हम सुन लें तो कल्याण ही कल्याण है। तो जिसके माध्यम से होता है उसको वो पुण्य का अंश प्राप्त होता है, बिकॉज दे बिकम द मेन इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट वी आर ऑल हियर। अगर ये नहीं करते तो हम होते ही नहीं, ये कथा आती ही नहीं, हम सैक्रामेंटो में कहीं कुछ कर रहे होते, लेकिन आयोजन हुआ तो हम आए। तो ऐसे ही हम संकल्प छोड़ के जाते हैं कि आप सबके हृदय में भी ये भक्ति रस जागे, और ये अंकुर है। अगर आप रोज आएंगे, आफ्टर 7 days यू विल टेल मी व्हाट डिफरेंस यू आर नोटिसिंग। तो ये भगवान की कृपा है, हमारी नहीं है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, अपने गुरु के चरणों की धूल हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो गुरु के चरणों की रज से ऊंची चीज इस धरती पर ब्रह्मांड में कहीं कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी आपको दिख रहे हैं, whatever you see, and if you like anything, that is the ray of our guru and of our lineage shining through us. If you see anything wrong you don't like, that is because we have not improved enough yet. We have to continue. We are human beings. हम भगवान थोड़ा ही हैं, इंसान हैं, और गलतियां होती हैं। इसीलिए हर पूजा के बाद क्षमा याचना किया जाता है कि भगवान हम आपके बच्चे हैं, जो भी गलती हुआ हमें क्षमा कीजिए। तो इसके साथ हम रिकैप कर लें, क्योंकि आज दूसरा दिन है भागवत का, सेकेंड डे वी आर ऑन। सो द यस्टरडे, एंड आई कैन सी सो मेनी फेमिलियर फेसेस। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये संकल्प ले रहे हैं। जैसे कल स्वामी जी बोले थे कि संकल्प लो कि रोज आना है। 7 दिन में आपके जीवन का परिवर्तन, और इतना बड़ा भागवत का ज्ञान, इतना
इसमें शुद्धता और रस है कि हमारा कल्याण निश्चित ही होगा। तो कल हमने क्या किया था, भागवत का महात्म्य डिस्कस किया था, द सिग्निफिकेंस। सप्ताह परायण क्यों, वाई नॉट 5 days, वाई नॉट मोर, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा वी हैड डिस्कवर्ड दैट। अभी समय का अभाव है तो हम सिर्फ टच करेंगे। नारद जी के पूर्व जन्म की बात हुई थी, व्हाट ही वाज इन हिज लास्ट बर्थ एंड हाउ ही बिकेम सो गुड इन भक्ति, भक्ति रस में कैसे गए। और तीसरा हमने व्यास जी के प्रशंसा और उनको स्तुति करी थी और बताया था कि उनको असंतोष था तो तब जाकर उन्होंने भागवत का ग्रंथ लिखा था। और फिर उसके बाद हमने सुखदेव जी को भी प्रणाम किया था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं 16 वर्ष के सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी और ये सब साक्षात्कारी संत हैं, मीनिंग दे आर ऑल एनलाइटेंड पीपल। देयरफॉर वी नीड टू टच, कम इन कांटेक्ट विद पीपल हु आर एनलाइटेंड। तो आज हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, भगवान कृष्ण ने कैसे उनकी रक्षा की और कैसे वो इस धरती पर आए। तो चलिए चलते हैं महाभारत में। महाभारत, रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता कहाँ पे हुई थी, महाभारत के समय जब युद्ध हो रहा था। तो युद्ध किसका हुआ था, कौरवों और पांडवों का। आपको याद है, पता ही है। कौरव एक भी नहीं बचा, पांडव एक भी नहीं मरा। वो थे सिर्फ 5 और वो थे 100 बच्चे और कई अक्षौहिणी सेना, मिलियंस ऑफ पीपल passed away in that thing। तो उससे द्रोणाचार्य जो कि इनके गुरु थे, दोनों के, कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उनका पुत्र था अश्वत्थामा। तो ब्राह्मण था और पुत्र था गुरुपुत्र। तो उसके अंदर वो दुर्योधन को बहुत मानता था। He liked and he was on the side of the Kauravas. So he did not like that they lost। और उसका सब कुछ, जब दुर्योधन की भीम ने गदा से मार दिया तो उसके बाद उसका मृत्यु होने वाला था। तो he wanted to give him a present, Ashwathama। He says, okay, let me go to the camp of the Pandavas and I will kill all the 5 Pandavas when they are sleeping। ट्रेचरी है, गलत है, लेकिन उसके दिमाग में आया। भगवान कृष्ण को पता था तो भगवान कृष्ण पहले पांचों पांडवों को अपने साथ ले गए। तो उस समय 5 पांडवों के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर सो रहे थे। अंधेरा था, दे हैड शीट्स ऑन। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये सब तो पांडव ही हैं, तो उन सबको मार दिया, काट दिया, खत्म। दे वर डेड, ऑल 5 ऑफ द किड्स। देन he realized that they are Pandavas 5 kids। तो जाके उसने दुर्योधन को बताया कि पांडव तो मरे नहीं, लेकिन पांडव के 5 बच्चों को मैंने मार दिया है, अर्जुन के, भीम, युधिष्ठिर इत्यादि। So they were in a lot of grief, Pandavas, because imagine you love your kids more than yourself। जब हमारे बच्चे को कुछ होता है तो हमें पीड़ा हो जाए कुछ नहीं, लेकिन बच्चे को पीड़ा होती है, हमें ज्यादा होता है, बोर ज्यादा बुरा, कि भगवान हमें दे दो कष्ट, क्यों इसको। तो 5 खत्म। तो इधर दुर्योधन जितना भी बुरा था, he was a very mean fellow, he never liked anything good। and धृतराष्ट्र मोह में फंसा हुआ था। Idea is not to get into too much into Mahabharata, I'm just giving you a brief sketch कि what happened, how परीक्षित is born। तो उसके बाद जब उसने 5 को मार दिया, दुर्योधन को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। Even he didn't like, he says, why did you kill innocent kids, they are kids, whatever। हो गया। तो अब क्या हुआ, अश्वत्थामा ने, इसके पास ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति थी। ब्रह्मास्त्र होता है, इट्स अ स्पेशल वेपन दैट फ्यू पीपल हैव हु हैव डन अ लॉट ऑफ पेनेंस। ही हैड डन इट। इसके पास वो शक्ति थी, इसको छोड़ना तो आता था लेकिन वापस खींचना नहीं आता था। सो ही वाज हाफ कुक्ड, हाफ क्वालिफाइड, पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं था। तो उसने क्रोधवश उसको, वेपन को छोड़ा। कहां पर, उत्तरा पता है कौन है, अभिमन्यु की धर्म पत्नी। अभिमन्यु वाज ओनली 16 व्हेन ही डाइड इन द महाभारत वॉरियर। उसको उन्होंने सबने मारा था, वो आप जानते हैं। तो वहां पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, अर्जुन के बेटे थे। और उसके बाद उत्तरा भाग्यवश उस समय गर्भवती थी। भाग्यवश ही बोलेंगे क्योंकि एटलीस्ट द लीनिएज इज कंटिन्यूइंग ना। तो देन
Uttara was pregnant and their baby was about to be born. तो इसने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उत्तरा भागती भागती भगवान कृष्ण के पास आई कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज सेव मी, आई एम इन ट्रबल. व्हाट हैपेंड कि ये समथिंग इज बर्निंग इनसाइड, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का शक्ति छोड़ा था. द हीट वाज कमिंग एंड डिस्ट्रॉइंग. तो लॉर्ड कृष्णा रियलाइज्ड, और वो ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि जब छोड़ दिया जाता है, नथिंग, नोबडी कैन टेक इट बैक, नथिंग कैन हैपन. आई मीन इट इज सर्टन कि गड़बड़ करेगा. तो भगवान कृष्ण खुद उसके गर्भ में गए छोटे बन के, because he is God, he is omnipotent, omnipresent, omniscient and very kind to Kunti and Pandavas. So he went in and he saw that there was fire flaming everything around in her womb, inside the womb of Uttara. And वो उसके खूब उन्होंने अग्नि को रोका खुद अपनी शक्ति से. He was effulging with golden rays which was much stronger than the ब्रह्मास्त्र. तो ब्रह्मास्त्र को उन्होंने अपनी शक्ति से रोक दिया अंदर जाकर. अब परीक्षित in the 7th or 8th month he was big enough to realize ये कौन आ गए हमारी रक्षा करने के लिए, because he was heating up inside, उसका मृत्यु होने वाला था. तो जब उसने ऐसे देखा तो उसको समझ आया कि ये भगवान कृष्ण है, क्योंकि और विष्णु शंख चक्र पदा गदा पद्म के रूप में वहां पर विद्यमान होकर वो घूम रहे थे, रक्षा कर रहे थे. He was protecting this baby. He wasn't named yet. नाम तो उनका बाद में पड़ा. तो फिर वो पैदा हुए, ऐसे वो पैदा हुए, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? अश्वत्थामा. The mean forces of the world will always try to put pressure on you. जब भी आपके कोई सफलता होगी, कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश करेगा ही. ये दुनिया का नियम है, क्या करेंगे. तो वहां पर जब अश्वत्थामा ने ऐसे कर दिया, तो ये जब पैदा हुए तो इसका नाम वास्तव में रखा गया था विष्णुरथ. विष्णु, क्योंकि विष्णु को बहुत लाइक करते थे भगवान कृष्ण, विष्णु के ही तो अवतार हैं, तो उनको बहुत मान देते थे पूरे पांडव. तो परीक्षित जब बाहर निकले, वो सब जगह ढूंढते थे उस गोल घूमते हुए छोटे स्ट्रॉन्ग जिसने इनकी रक्षा करी थी. तो परीक्षा का मतलब होता है एग्जामिनेशन. तो एग्जामिन करते रहते थे, अरे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है. तो उन्होंने देखा नहीं था अभी तक जिन्होंने मेरी रक्षा की, इसीलिए उनका नाम पड़ गया राजा परीक्षित. जैसे हम भी अपने छोटे बच्चे को, जैसे नाम कुछ और है लेकिन बुलाते किसी पेट नेम से, है ना, मुन्नू चुन्नू बबलू जो भी है बुलाते हैं, नाम असली नाम कुछ और है. तो ऐसे ही उन्होंने उसका नाम परीक्षित रख दिया, क्योंकि वो सबको यूं देखते रहते थे, ध्यान से देखते रहते थे कि ये तो नहीं है कृष्णा, नहीं ये नहीं है, ये. तो ऐसे करते करते ये इनका जन्म हुआ. अब ये जन्म हुआ, समय बीतने लगा, उधर भगवान कृष्ण के जाने का समय आ गया. लॉर्ड कृष्णा वाज 126 years old and he was quite young by that standard. 126, 75 में तो ये युद्ध कर रहे थे सब लोग, अर्जुन वगैरह. तो वो द्वापर युग था, ये कलयुग है. यहाँ पर तो कोई 75 तक जी भी जाए तो बोलते हैं बहुत अच्छी लंबी आयु, शाबाश, बहुत अच्छा किए. तो ये ऐसा परीक्षित का ये फिर जन्म हुआ. अब पांडवों ने ये सोचा, अच्छा भगवान कृष्ण धरती छोड़ के चले गए. कल हमने खूब इसका डिटेल में बताया भी था कि फिर वो भागवत को नॉमिनेट करके गए, लाइक आई एम लिविंग इन माई एब्सेंस, दिस इज मी. इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है. जहां पर भागवत होती है मेरा सूक्ष्म रूप रहता है. जैसे हनुमान जी सब जगह रहते हैं, जहां पर भी रामायण होती है हनुमान जी रहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं. अश्वत्थामा भी चिरंजीवी, ऐसे 7-8 चिरंजीवी हैं. इस तरीके से भगवान के, वो तो क्रिएटर हैं, पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. उन्होंने फिर परीक्षित को धीरे धीरे वो राज्य सौंप दिया. कहाँ का? हस्तिनापुर. सो दे वर वेरी एफ्लुएंट पीपल. तो पूरा राज्य मिल गया अब राजा परीक्षित को. वो चले गए स्वर्गारोहणी करने. वहां पर है बद्रीनाथ के सामने एक जगह पर्वत है, नर नारायण पर्वत, यूट्यूब पे देखना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको. तो क्या है कि अभी भी वो सब स्थान वहां पर हैं. और वहां पर ऑल द पांडवास देन डिसाइडेड कि अब हमारा, उस समय ये होता था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. Even kings would leave everything and go to the forest. Now it's time for us, bhai, let the next generation come, let them flourish.
जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, लेट द नेक्स्ट जनरेशन कम एंड सिट एंड गिव ऑल दीज दैट वी आर डूइंग, क्योंकि हम ही करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगली जनरेशन को इस बटान को संभालना होगा, ये छोटे छोटे बच्चों को। इस छोटे से बच्चे को देख रहा हूँ, पता नहीं कितना, 5 साल के भी नहीं लगता ये, लेकिन कितना प्यार से आंखें तन्मय होकर कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर कार्य है, बहुत सुंदर, छोटे छोटे। और आगे इनको सनातन धर्म में भी ज्ञान देना है, मतलब शुद्धता से। ये जितना सत्संग सुनेंगे, कल नारद जी का क्या कथा था, यही कथा था कि नहीं? सेम स्टोरी, 5 years old and how he became नारद मुनि। तो इस तरीके से हमें इस बात का ध्यान। तो अब परीक्षित जी बड़े हो गए, वो अब राजा बन गए। फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि धीरे धीरे चलते हुए तो कई साल लग जाएंगे। ये बहुत बड़ा है भागवतम। हमको तो अभी 2 घंटे के अंदर 5-6 दिन में आपको हम छोटा सा स्पाइस जैसे सैंपल दिया जाता है। It's a small sample only, nothing more. That's why we say if all of you do Bhagavatam once a week and we come every time, we will still not finish Bhagavatam by touching a new story each time. इतना गूढ़ इसके अंदर रस और ज्ञान और पान है, और हर भागवतम में कुछ ना कुछ नया आनंद, कुछ ना कुछ नया ज्ञान, नई शक्ति प्राप्त होगी। Every time it's ever renewed. उसको बोला जाता है प्रणव। What is pranav? Your breath is pranav. Every time you breathe, it's a new breath coming in. The old one is already left. toxified, gone. New. इसीलिए हम ओम का जब चैंटिंग करते हैं वो प्रणव है। तो इस तरीके से परीक्षित जो बड़े हो गए, तो वहां पर क्या था, कलयुग आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण तो चले गए, ही इज गॉन नाउ। एंड ही आल्सो सेड दैट टू उद्धव एंड एवरीबॉडी दैट कलयुग विल कम एंड कली विल बी टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। कली ध्यान करेंगे, लेकिन उस समय क्या होगा कि मैं तो अब हूं नहीं, तो तुम्हें ही ध्यान करना पड़ेगा और इस राज्य को संभालना होगा। तो ठीक है, वो संभाल रहे हैं। तो वो देखते हैं धरती, और धरती गौ के रूप में बैठी है, लाइक अ काउ, एंड वो बैल के रूप में बैठे हैं। कौन? धर्म। धर्म इज एथिकल प्रिंसिपल्स। तो धर्म होता है 4 टांगों पे, गाय और बैल 4 टांगों के जानवर हैं। तो वो 4 होता है तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप मीन्स पेनेंस, पवित्रता प्योरिटी, दया कंपैशन, सत्य ट्रूथ। तो ये सतयुग में 4 होते हैं, फिर एक एक करके इनकी 3 टांगें खत्म हो चुकी है, एक ही बचा था, तो बेचारा रो रहा था धर्म। तो धरती माता भी बेचारी बहुत परेशान थी कि मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, सो मेनी एट्रोसिटीज आर बीइंग कमिटेड, पीपल आर बिकमिंग इन अनएथिकल, दे आर इंटॉक्सिकेटेड एंड दे आर रनिंग आफ्टर नेम, फेम, मनी। आत्मा, हु केयर्स अबाउट आत्मा, हु केयर्स अबाउट, अभी तो मौज करो, ऐसा मेंटालिटी हो रहा है। तो ऐसा सोच के कली आ गया। कली मीन्स यम, मतलब कलियुग, इसीलिए इसको हम युग को कलियुग बोलते हैं। और ये चक्र चलता रहता है। We talked about it briefly yesterday. 432,000 years का कलियुग भी रहेगा। और कलियुग में क्या होता है, तो ये कलियुग जो है मर्सीलेसली उसको मार रहा था। किसको? गाय को और बैल को। That is not good. You should not only not hit anybody but hitting animals, especially गऊ तो हमारी माता है, उसकी हम पूजा करते हैं, तुम उसको ऐसे मार रहा है। तो परीक्षित was going by, he saw that he did not like it. वो राजे का भेष बनाकर कलियुग वहां पर उसको टॉर्चर करता था, उन जानवरों को, बेचारे ऑलरेडी रो रहे थे। तो देन ही गॉट वेरी अपसेट एट कली, बोला कि तुम यहाँ से, तुम्हें अभी मैं मारता हूँ, तुम मृत्यु दंड के लायक हो, क्योंकि तुम बिना बात के जानवरों को कष्ट दे रहे हो। Why are you hitting them? They have not done anything wrong to you. तो वो बोला, नहीं, मेरा तो महाराज, हम कलयुग चल रहा है, कलयुग में हम ही ये भ्रमित करते हैं सबकी बुद्धि, हमें भी जीना है, हमारा भी सांस चलता है, अब हम क्या करें। तो राजा बोला, निकल जाओ, हमारे राज्य से निकल जाओ, गो अवे। They said, but wherever we go, you are there. ये पूरा राज्य हस्तिनापुर, उस समय बहुत बड़ा राज्य था, सब कुछ था। तो उसने कहा, महाराज आप सबकी ध्यान करते हैं, मेरा भी ध्यान कीजिए, कुछ तो मुझको रहने की जगह दीजिए। Give me some place to live and I will not go outside that place. I will stay there and I will not bother anybody else.
So he said, and that made sense to the king also. That's fair. He also has to live. तो उसको बोला कहाँ कहाँ, बोला मेरे को 4, राजा ने बोला तुम्हें 4 स्थान दिए जाते हैं. द्यूत, गैम्बलिंग, जहां पर भी गैम्बलिंग होगी कली इज अलाउड. गैम्बलिंग द्यूत है. दूसरा मदिरापान. मदिरापान क्या? इंटॉक्सिकेंट्स, ड्रग्स, लिक्वर, अल्कोहल, and you are smart, whatever else happens. Intoxicants. तो वहां पर भी कलियुग पहुंच ही जाता है. तीसरा है स्त्री संग. स्त्री संग means स्त्री is not just woman, it means opposite sex, male, female. So whatever that lustful desires are there, कली shows up. आ जाता है कहीं से भी. और चौथा है हिंसा, violence. When we get violent, we hurt people, we do this, so many, even right today, it's happening, isn't it? Ukraine and Russia and this and that. सब कुछ अपना अपना लेके हम घूमते रहते हैं. तो 4 उसको स्थान दे दिए. वो बोला ठीक है महाराज, लेकिन 4, बाकी सबके पास तो सब कुछ है, मुझे एक और स्थान दे दो. Give me 1 more. So he said, okay, granted, take 1 more. What is it? बोला सुवर्ण. सुवर्ण means gold. Gold means wealth, possessions. So these 5 went to Kaliyug. And बस वो फिर अधर्म जो होने लगा तो राजा ने बोला ठीक है अब तुम जाओ. Then what happened is one day the king came back and Kali was fine with his 5 places. तो king went hunting one day. उनका शौक था, राजे महाराजे हैं, हंटिंग जाते हैं, तो शिकार खेलने गया और एक दिन वो अपना साथियों से गुम गया. चलते चलते भीतर he went into a dense forest and he lost his way. अब lost his way and he is a king, मतलब he is used to lot of pampering, opulence, बड़े बड़े महल हैं. अब यहाँ पर जंगल में जहाँ गुमा कुछ नहीं है, अब प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, अब कुछ भी नहीं है और सिर्फ घोड़ा पास में है. तो उसको नीचे उतर के ढूंढने लगा, अब मैं आई एम वेरी थर्स्टी, व्हाट शुड आई डू. तो उसने देखा सामने एक ऋषि का, भाग्यवश उसको किसी ऋषि का कुटिया मिल गया. उस समय ऋषि जंगलों में रहा करते थे, इसीलिए वानप्रस्थ नाम सुना होगा. वानप्रस्थ मतलब वन में प्रस्थ करो. यू आर 50+, गो टू द वन एंड डू पेनेंस. तो इस तरीके से वहां पर एक ऋषि आश्रम में ध्यान तपस्या में मग्न थे. तो ही वेंट देयर, देखता है ये ऋषि हैं, उनका नाम था शमीक ऋषि, शमीक महाराज. और उस समय वो समाधि में थे. समाधि का कल हमने बात किया था ना, सत्वा रजस तमस तुरिया, उससे परिस्थिति समाधि. इवन 1 second of samadhi is enough to give you more joy than all the world combined can give you, mind you. One just that touch of samadhi. Why is that? क्योंकि समाधि में समय और स्थान और ये समय और रूप खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं. Name and form are gone. You are beyond time and space. No time, no space. Even science, everything we do in this world is within time and space. So जब हमको समाधि का, तो इसीलिए उस समय ये ऋषियों ने तप करते थे तो बहुत बहुत देर समाधि में रहते थे. समाधि में 6 दिन ऐसे जाते हैं जैसे 6 सेकंड, पता भी नहीं चलता. You don't excrete, you don't feel hungry, nothing happens. These are high states of these saints and sages. तो वहां पर वो उस समय उस स्थिति में थे. तो राजा ने बोला मेरे को प्यास लगी है, आपके पास पानी है, डू यू हैव वाटर. अब ही इज नॉट लिसनिंग, वो तो दूसरी दुनिया में है. सो नाउ द किंग इज गेटिंग वेरी अपसेट दैट हे आई एम द किंग, आई हैव, दिस इज माय कंट्री, माय एवरीथिंग, आई एम थर्स्टी, आई हैव कम टू यू. तो कौन बोला? ईगो आ गया ना, कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और ये संत जो है खड़ा भी नहीं हुआ, खड़े होने की तो बात छोड़ो, मुझसे मैं पानी मांग रहा हूं तब भी ये सुनता नहीं है. तो ही गॉट अपसेट कि यहाँ काम नहीं बन रहा. तो सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश जो भी समझो, एक मरा हुआ सांप पड़ा था. देयर वाज अ डेड स्नेक लाइंग देयर एंड ही हैड हिज बो एंड एरो विद हिम. राजे थे तो उसने क्या किया, गुस्से में, और कभी कभी हमको भी आ जाता है ना गुस्सा, सब इंसान है भाई, इंसान है तो आता है. तो उसने क्या किया, तीर को उठा के उसने डाला उसमें सांप के, भोंक के, he
pulled the snake and he put it in the neck of Shamik Rishi. So now the sage still doesn't know, he is in samadhi, उसको क्या पता भाई तुम अभी, इसीलिए कभी आपने अभी फूलों का हार डाला बहुत अच्छा, कल को कोई जूते का हार डाल देगा बहुत अच्छा, क्या करना है, नमस्ते। अगर हम विचलित हो जाएंगे तो क्या फिर तुम संत थोड़ा ही हो। संत होने का मतलब कि तुम हर स्थिति में सम रहो, इक्वानिमिटी। It's very easy to sit nicely, comfortably with good food and good people and give nice lectures, but it's very hard to implement it. जब आपके जिंदगी में कष्ट आता है, तो ऐसे ही राजा इतना अच्छा राजा, अब सोचो अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, तो then when that happened, he did not know what to do. तो अभी राजा उसको डाल के चला गया। अब उस ऋषि का, शमीक ऋषि का, he had a 12-year-old son. अच्छा, that time whatever these sages say will happen, and through that tapasya, that knowledge also went into the genes of their kids. So जब उसको पता चला, वो नहा रहा था, छोटा बच्चा 12 साल का, लेकिन उस समय वो बहुत एडवांस रहते थे। शंकराचार्य वगैरह 30 साल के तो चले गए, धरती छोड़ के चले गए, लेकिन कितना बड़ा काम करके गए। आज तक फिलॉसफी और साइंस परेशान है कि कैसे एक इंसान इतना काम कर गया। तो इस तरीके से जब शमीक ऋषि, जब वहां पर किसी बच्चे ने देखा, वो जाते जाते भाग के बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में सांप है और वो बंद है और कोई राजा ऐसे करके गया है। He saw the king going on the horse and the snake like this. श्रृंगी ऋषि उनका नाम था, छोटे 12 वर्ष के। And so he's obviously not fully mature, isn't it? हमको भी 21 साल के बाद बोलते हैं अब तुम दारू पीने लायक हो गए है ना, अब तुम सिगरेट पियो, दारू पियो, जो मर्जी करो, लाइसेंस मिल गया तुम। So he wasn't fully developed yet. He was a 12-year-old boy. तो उसने जब सुना कि मेरे पिता के साथ ऐसे हुआ, without checking anything, इतना क्रोधित हो गया, पानी निकाल के बोला, वही श्राप, जैसे ही संत पानी पकड़ ले समझ जाओ कि कुछ होने वाला है। लेकिन कल आपको श्राप का मतलब भी बताया था। It means auspicious. Bodily you will suffer, other ways you may not like it, but it is sure to evolve you into something very positive. Something good will come out of it, as we will see. Even Parikshit goes through that. अच्छा, अब उसने श्राप निकाल के पानी निकाल के बोला, जिसने भी मेरे बाप को, जिस राजा ने भी मेरे बाप के साथ ऐसा किया है, आज से 7वें दिन तक्षक आकर उसको डसेगा। तक्षक नाग। अब देखो, इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि मरना पड़ जाए। अरे भाई, हो गया यहाँ तो हम सॉरी डैड, सॉरी लेट मी गो, है ना, हम बोलते हैं या डोंट वरी अबाउट इट, बट नॉट देयर। वो तो अब एक बार ही बोल दिया तो वो तो लिखा गया। There was nothing that even Shamik, now then what happens is, then he is उसके बाद वो गया अपने पिताजी को देखने, पिताजी को उसने हिलाया तो पिताजी समाधि से नीचे आके वापस आ गए। He was not dead and he didn't kill him, he only put a dead snake in his neck. That's all that happened. तो अब क्या बोले, वो शमीक ऋषि ने कहा क्या हुआ, तो वो रो के लिपटने लगा, अपने बाप से रोने लगा। श्रृंगी ऋषि कहता है, डैड बड़ा गलती हो गया। क्या गलती? ऐसा हम सोचा था कि आप तो चल बसे हो लेकिन आप तो चले बसे नहीं हो, यही बसे हुए हो। तो हम क्या करें? तो अब मुश्किल आ गया है कि हमने तो ये श्राप दे दिया कि वो आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग काटेगा और उसका मृत्यु होगा। That these are the words he uttered. Now the words were so pure and so true, coming out of so much tapasya of such a big sage, that even God couldn't take those words away. अब ये होगा ही। तो अब शमीक ऋषि got very upset, इसीलिए अपने बेटे को उन्होंने खूब डांटा भी कि ये क्या मूर्खता किया तुमने। राजा
जो भी होता है हमारा पालन कर रहा है, हमारे को भोजन वहां से मिलता है, प्रजा वहां से चलती है, कर वहां से ये संभालते हैं पूरा। और अगर राजा मर गया तो अराजकता आएगी, ऑब्वियसली बैड थिंग्स विल हैपन, डिकॉइट्स विल कम इन एंड लूटिंग होगा। तो राजा का कर्तव्य बहुत होता है, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ही गॉट वेरी अपसेट एट श्रृंगी ऋषि। बट वो बेटा भी क्या करे, वो डिप्रेस्ड है, बस दैट्स ऑल। 12 साल का बच्चा है, गलती हो गया, लेकिन कितना बड़ा गलती। अब उधर राजा भी जाते जाते परेशान हो रहा था कि ये मैंने कैसे कर दिया। परीक्षित पांडवों का पुत्र, अभिमन्यु का बेटा, कोई छोटा मोटा नहीं, और इतना बड़ा राज्य, पूरा हस्तिनापुर को संभालने वाला अकेला राजा, और बहुत अच्छा राजा, सबका ध्यान करता था। मतलब मिस्टेक्स कैन हैपन बाय एनी इवन गुड पीपल एंड देन दे सफर। वो बोलते हैं मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मैं ही तकलीफ में रहता हूँ, वो तो मौज कर रहे हैं। तो ऐसे हो जाता है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट इज मेनी जन्मस, समथिंग हैज टू हैपन। अब राजा बेचारा थका हारा, आई हैड अ रफ डे, बहुत प्यास भूख भी लगी थी। तो जैसे ही उसने अपना मुकुट उतारा तब उसको लाइटनेस फील हुई और अपने गलती का एहसास हुआ। मुकुट किस चीज का था? सोने का। कौन बैठा हुआ था? काल। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब हमारा काल अच्छा ना हो, समय अच्छा ना हो, तो हम मूर्ख बातें कर ही बैठते हैं। अच्छे समझदार लोग भी, वेरी एजुकेटेड पीपल, एंड समटाइम्स वी गेट इनटू ऑल दिस ट्रबल, स्पेशली जब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य पकड़ लें। इफ दीज 6 थिंग्स कैच अस, देन वी आर गॉन केस, क्योंकि बुद्धि नहीं चलता उस समय। तो जब राजा को ध्यान आया, he got very ashamed of himself कि why did I treat a saint like that? He felt very bad. और उसने अब बोला मैं पश्चाताप करूंगा, I will repent, penance। और हमारे शास्त्रों में ये विधि भी है, if you do something wrong and you realize it's wrong and then you do penance for it and you say अच्छा हम आगे से वो नहीं करेंगे, तो वो माफ हो जाती है। फिर नरक वरक का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आएगा ही नहीं, that will go away because you have neutralized it while you were alive। लेकिन अगर हमने उसको कुछ नहीं किया, छोड़ दिया और वही चीज करते रहे, then God says okay, through experience you will learn। so उस हिसाब से हमारा जन्म मरण का चक्र होता है, तभी हम नीची ऊंची योनियों में जाते हैं थ्रू आवर कर्म। तो अब राजा उधर शमीक ऋषि उसी समय चल पड़े। शमीक ऋषि did not take any longer, he says let me go and tell the king he has only 7 days। 7 दिन में तक्षक काटेगा और तुम्हारा जीवन खत्म होगा, बस, और कोई चारा नहीं है। तो अब वो जब पहुंचे, रात हो गया था, तो रात को दरबान बोलता है महाराज प्रणाम, आप इतनी रात को क्यों आए? बोलते हैं एक समय भी एक मिनट कीमती है, अभी राजे के पास बहुत कम समय है, मैं इमीडिएटली उसके पास लेके जाऊं। तो जब when they took him there, he told him the truth। He says I'm very sorry, I was meditating, हमें पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब ऐसा हमारे बेटे ने कर दिया है और इसका कुछ विकल्प नहीं है, nothing, there is nothing that can be done, the body will have to go in 7 days। तो अच्छा, think about Parikshit's situation। In Bhagavad it says he was very calm about it। Can you imagine if somebody comes and tells you you only have 7 days? Would we feel hungry? Would we feel like going for a picnic or talking so bad about somebody? But वो नहीं हिला। परीक्षित बोले महाराज मैं संकल्प लेता हूं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि उनका जो जीन्स थे, जो पूर्वज थे, इतने प्योर और पवित्र थे कि उसके अंदर ये संस्कार कूट के भरे हुए थे, कूट के, कि अब ठीक है शरीर है, आएगा और जाएगा, लेकिन मुझे इसका पश्चाताप पहले ही करना है। उसने पहले ही संकल्प किया था। He thought of it even before Shamik Rishi came, but once he heard this, he says महाराज इसी समय, right now, you are here standing in front of me, he took the water this time। He says I pledge I will not drink this water through it। This water made me do what I did to you। Because of this body's thirst, I feel so
ashamed of myself, इतना भारी गलती मुझसे हुआ, तो अब यही जल जिसने मुझसे ये सब कराया, मैं इसको त्याग करता हूँ। ये सत्य है। ये सोचो, हमें थोड़ी देर पानी नहीं मिले हमारा क्या हाल होता है, थोड़ी देर भोजन डिले हो जाए तो I don't like this, I don't like that, why did you cook this today? We do. But here he said, I will not touch food, I will not touch water. And who is he? The richest king in India, भारतवर्ष का सबसे वैभवशाली अमीर। उसी समय उसने सब छोड़ा, महल त्यागा। He didn't care about that. He says, now is the time for my soul. अब मेरे को अपनी आत्मा का रक्षा करना है, प्राण का बचा। ये शरीर तो who lives here forever? Nobody. We can't, even if we want to, it is forcibly taken away. So we might as well realize it and then consciously know that this body is just a boat. You need the boat to cross the river. But the boat should not have holes. It should not be tattered and torn. It should be strong. तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारा धर्म है, खाना हमारा धर्म है, उसको उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। But overly illusion में घुसना, उसको overly श्रृंगार करते रहना, उसी कोई I do this, does that, TikTok. So all that stuff that you see, you know, what is that? It's all body consciousness. What else is it? Nothing else. Who does anybody show their spirit in TikTok? No, nobody can do it. Everybody is happy. Inside everybody is sad. Why is that? सोचिए, कभी कोई आपने पूर्ण तरह से कोई सुखी इंसान मृत्यु लोक है। ये जगह मृत्यु लोक, मतलब मृत्यु means the word itself says death. तो यहाँ पर अब राजा परीक्षित को 7 दिन में जाना है. So he says, what should I do? And therefore he does his व्रत कि अब हम संकल्प लेते हैं कि अब हम 7 दिन तक केवल अपना आत्मा का कल्याण के लिए हम समय बिताएंगे. उसी समय उसने जन्मजय को बुलाया. That moment, midnight, as soon as the Shamik Rishi is coming and giving him that news, he did not waste. Shamik Rishi did not waste a minute. Here Parikshit didn't waste a minute. Immediately, meaning a good guru and a good disciple are both required. गुरु ज्ञान देता रहे, डिसाइपल उसका मान नहीं करे, या डिसाइपल अपना मेहनत करता रहे, गुरु उसको पूरा ज्ञान नहीं दे, तो दोनों ही भंग हो जाते. बट इन दिस केस ही लेफ्ट हिज पैलेस, वॉक्ड. अब उसी समय वो राजा नहीं रहे. कौन बन गए? राज ऋषि परीक्षित. Raj Rishi, he became a saint right at that moment without even changing his clothes because his resolve was so powerful. जैसे भीष्म ने व्रत लिया था महाभारत में, कभी शादी नहीं करूंगा और कभी वो नहीं होगा, राज भी नहीं लूंगा, अधिकारी होते हुए भी. तो ऐसे ही परीक्षित ने किया और वो अब कहाँ चले गए? जहां से ये मूर्ति, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, शुक्रताल. अब वो जगह उस समय अभी भी वो वृक्ष है, वट वृक्ष, उसका पत्ता शायद हमारे पास होगा. पूजा के बाद आप उस वट वृक्ष को के पत्ते को हाथ लगाकर आशीर्वाद भी ले सकते हैं. बिकॉज वी आर ब्लेस्ड, वी हैव बीन टू ऑल दीज प्लेसेस, सीन देम, सैट देयर, मेडिटेटेड. तो तभी ये सब शक्ति आता है, ऐसे थोड़ी आ जाता है. और वो भी गुरु का शक्ति है. जैसे ही वहां से जनरेटर बंद होगा, अगर पीछे से पावर चला जाएगा, ये सही सब बंद हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ना बत्ती चलेगा, ना कुछ होगा, हमारा सत्संग भी रुक जाएगा. ऐसे ही जब से भगवान का और पीछे गुरुओं का, हमारी लीनिएज का पावर चलता रहता है, हम बोलते हैं. जैसे ही वो शक्ति नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे. तो इसीलिए देयर इज नथिंग, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन द डिवाइन प्लान. हम सब यहाँ पर कुछ देर के लिए ही हैं. जैसे परीक्षित को ये समझ आ गया, वो चले गए शुक्रताल. इस जगह उस समय गंगा वहीं बहती थी. अभी जैसे गोमुख की गंगा पीछे हो गई है, वैसे यहाँ पर भी गंगा अभी थोड़ी दूर चली गई है वहाँ से. शुक्रताल, इफ यू गो टू इंडिया, यू गूगल शुक्रताल, यू कैन गो देयर. वहाँ पर राजा परीक्षित का वो वट वृक्ष वही है, क्योंकि अबाउट 5000 ईयर्स हुए हैं कृष्ण को गए हुए, तो तब से परीक्षित little more less than that. So all that is there still today. वहाँ पर 8 भागवत होते रहते हैं. Such a beautiful place. They have about 8-9 different areas and different saints and sages are doing it.
ऑस्पिशियस। तो इस तरीके से वहां पर जब ये पहुंचे परीक्षित जी, ऑटोमेटिकली थ्रू डिवाइन ग्रेस ऑल सेंट्स एंड सेजेस एंड भक्त जन आपकी तरह ही, कल हम क्या बोल रहे थे, कई जन्मों के पुण्य जब होते हैं ऐसा सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, कई many lifetimes, otherwise you will not be able to come, some obstruction will come, some sickness will come, some other problem will come, you will not be able to, or you may not even be interested, मतलब अभी वो maturity level नहीं आया है। तो ऐसे ही जब वो वहां पर गए तो सब लोग, यहाँ तक कि इनके पिताजी भी, व्यास जी महाराज जिनकी कल हम बात कर रहे थे, व्यास गद्दी जिनकी है, तो वो भी वहां पर खड़े थे, सब साधु संत, शौनक जी थे और ये सब तरीके के बड़े बड़े संत, सूत जी, शौनक जी एंड 88,000 ऋषियों के करीब, सब, गंगा का तट था, सो लॉट ऑफ स्पेस एंड दे आर ऑल सिटिंग देयर। गंगा क्योंकि वहां से प्योरिटी आता है, शुद्धता आता है, पाप धुल जाता है, इसीलिए हम गंगा किनारे बैठ के पूजन ध्यान करते हैं। वहां पर कोई नियम भी नहीं लगता, वैसे बोलते हैं उत्तर की ओर मुख करो या ईस्ट की ओर बैठे ब्राह्मण यहाँ बैठे, ऐसे गंगा किसी भी तीर्थ स्थान में वो नियम है ही नहीं, क्योंकि इतनी पवित्रता है गंगा में, तुम जैसे मर्जी जो मर्जी करो, स्नान करो, केवल शुद्धता रख के, जस्ट प्योरिटी ऑफ माइंड। तो वहां पर जब वो बैठ गए इस तरीके से, वहां सुखदेव जी महाराज पधारे, 16-year-old, and everybody stood up, including his father. Father doesn't need to stand, उनका तो बेटा है, बट ये अब बेटा नहीं रहे, कौन थे? Guru. He came as a teacher, and when he comes as a teacher, there is no relationship between you and me and uncle and auntie and masi, nothing. Guru and disciple, that's it. तो अब वो गुरु बन गए और वहां पर, and he also was divinely confident. ये नहीं है, सबने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया सबको, अपने पिताजी को भी, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊंचा था, भक्ति रस में बहुत डूबे हुए थे, और ये ज्ञान राजा जनक से, उनके गुरु राजा जनक थे। सोचो, हम सोचते हैं गृहस्थ क्या करें, गृहस्थ ही तो थे राजा जनक, a householder, a king and an enlightened sage and Shukdev ji's guru. So all of us can get enlightened. Let us not undervalue ourselves. Let us not say, अरे अब कहाँ होगा मुझसे, कहाँ। वाल्मीकि का सोचो, हत्यारा, killer, he killed people, he was a highway robber, and look what he did. योग वशिष्ठ लिख दिए, रामायण लिख दिए, इतने बड़े संत बन गए उसी जीवन में, सेम लाइफ। तो ये सब संभव है। तो इसको हम कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक सुंदर सा भजन सुने इस बहुत ही पवित्र मंडली से। मतवाला, मुरली वाला तुम्हें मतवाला, लोग कहे तेरा धुन निराला, मुरली वाला तुम्हें मतवाला, मुरली वाला तुम्हें मतवाला, लोग कहे तेरा धुन निराला, मुरली वाला तुम्हें मतवाला,
गोरी राधा की मटकी फोड़ो, 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 मरो हो गयो काला, लोग कहते मुरली वाला तुम्हें मतवाला, मुरली वाला तुम्हें मतवाला, लोग कहते राधु निराला, लोग कहते राधु निराला, लोग कहते राधु निराला। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। तो परीक्षक जी कहाँ बैठे हैं? गंगा के तट पे। किनके साथ? साधु संतों के साथ, ऋषियों मुनियों के साथ, ऐसे ही जैसे हम बैठे हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर बहुत भारी समस्या है, परीक्षक जी के ऊपर ना। 7 दिन ही है, उनको पता है। सो फॉर हिम टाइम इज ऑफ द एसेंस। और हम समझते हैं अरे बहुत जिंदगी है, काल करे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना है बरसों। ऐसे बोलते हैं, हम सोचते हैं। लेकिन कब किसका आ जाए फिर बोलते हैं अरे भाई उसकी मट्टी में जाना है, इसकी मट्टी में जाना है, अब यहाँ हो गया, वहाँ है, हो जाता है। जिनकी मट्टी है, कभी उन्होंने ऐसे सोचा था कि आज के दिन हमारा अंत समय होगा, टुडे इज आवर लास्ट डे? नोबडी नोस। तो इस तरीके से राजा परीक्षित जब वहां पर बैठे हैं, सुखदेव जी ने पूरा उनको ओपन ऑफर दिया कि तुम जो प्रश्न हो मुझसे पूछो। अब सुखदेव जी जो भगवान के रूप में वहां पर विराजमान हैं, हर प्रश्न का उनके पास हल है। इसीलिए गुरु शब्द आता है। गुरु मीन्स टू टेक यू फ्रॉम द डार्कनेस एंड टू ब्रिंग यू इनटू लाइट। गु मीन्स गुफा, अंधेरा। रू मीन्स उजाला। तो असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम सब अंधेरे से उजाले की ओर जाना चाहते हैं, ये हमारा स्वरूप है। तो ऐसे ही परीक्षक जी ने इमीडिएटली बहुत डिप्लोमेटिकली हम सब के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बोल रहे थे, ये तुमने जनहित के लिए क्वेश्चन पूछा है, सो आई एम ओवरवेल्म्ड, आई टेल यू। ऐसे ही परीक्षक ने जो 2 क्वेश्चंस पूछे, वो हम सब के लिए, अपने लिए तो पूछे ही। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, वी डोंट जस्ट से गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस स्ट्रैटन सिटी ओनली। नो, एवरीथिंग, पूरा ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड। तो सर्वे भवन्तु सुखी, मे ऑल बी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू यूज द वर्ड ऑल, आरंट यू इंक्लूडेड इन इट? यू डोंट से एक्सक्लूड मी, you are part, automatically part of it। में सर्वे, सबका, भवन्तु सुखिना, तो क्या है? सबको आनंद प्राप्त हो। सर्वे संतु निरामया, सब संत और डिजीज फ्री हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। ये शक्ति केवल सनातन धर्म में ही है। बाकी सब लोग लड़ते रहते हैं, इसमें ये है, उसमें वो है। जो भी धर्म के नाम पर झगड़ा करता है या मत करता है, 1 नंबर का मूर्ख है। I'm sorry, but that's really the truth. Because जैसे अभी स्वामी जी बोले, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, there is only one truth. You can tell it in any language, any way, anyhow. Only 5 things on this planet, in the cosmos also, not only the planet, the whole ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड को ब्रह्मांड बोलते हैं। It's the womb actually, the cosmic womb, जहाँ से हम सब, जैसे माता अपने गर्भ से बच्चे को निकालती है। अभी छोटी बिटिया आई है आपके घर में, तो इस तरीके से ही भगवान का ये जो गर्भ है, वहाँ से ये पूरे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। All these things come. So he asked 2 questions initially, but then those 2 questions created many questions for the next 7 days. Nobody slept. They were all so immersed in that joy of satsanga कि सबका कल्याण हुआ। और उसके बाद ये भागवतम तब से चल रही है, अभी तक चल रही है। भारत में कई जगह तो महीनों चलती है। तो लेकिन जो हफ्ता भर भी कर ले, 1 घड़ी आधी घड़ी आधव की पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, कोटि, thousands of sins are gone। अभी हम बैठे हैं, कितने हमारे पाप कट रहे होंगे हम जानते भी नहीं।
वी कैन नॉट, क्योंकि दिखता नहीं है, दृष्टि नहीं है। लेकिन कौन से 2 प्रश्न अर्जुन ने पूछे? परीक्षित ने, उनके दादा थे अर्जुन, परीक्षित जी के। पहला क्वेश्चन था, व्हाट शुड अ पर्सन डू इफ ही नोज ही इज गोइंग टू डाई विद इन अ फ्यू डेज? क्वेश्चन तो उनके लिए था, लेकिन हमारी सबकी भी तो यही समस्या है। हम कोई परमानेंट पासपोर्ट लेके आए हैं क्या? नो, यू विल नॉट गो एनीवेयर, यू विल लिव परपेचुअली। नो सच थिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर एनीबडी, वेदर यू आर टिम कुक और एप्पल, और वो कौन था एप्पल? स्टीव जॉब्स, राइट? ओनली 50 समथिंग. And he repented so much. He says, I wish I would have spent more time with my things that mattered. Because then you may be the richest person in the world, but all that money becomes a heap of garbage. What will you do with it? You are going to go, you can't even take a broken needle with you. टूटी हुई सुई भी साथ नहीं जाएगी, तो वो सब पैसे की तो बात ही छोड़ दो। तो जो जाना चाहिए वो लो। अभी जैसे आप सब लोग जो कमा रहे हो, ये आपके परमानेंट बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ता है। आपके जीन्स में नहीं जाएगा, आपके बैंक, यहाँ के लोकल बैंक में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा मृत्यु होगा, वो सब, जब हमको सब छोड़ देंगे, हमारे अपने छोड़ देंगे, समझ गए? कहाँ तक? वहीं तक जाएंगे ना। उसके बाद हमारे शरीर का क्या होगा? 3 ही ऑप्शंस बचती हैं। जो दफनाते हैं, उसमें अगर खोलेंगे हमें कुछ देर बाद, तो हमारे अंदर से कीड़े दिखेंगे, isn't it? That's the truth. Only worms will come out of us. This body that we had so much attraction to, now there is worms. Or if we believe in fire ceremony, cremation, ashes, थोड़ा सा ashes ही तो बचता है, उसको फिर हम बोलते हैं गंगा में डाल देना, ओशन में डाल देना, ये डाल देना। तो 5 तत्व में। और तीसरे जो जैसे साधु संत होते हैं, जंगल में ही मृत्यु हो गया, वन में ही मृत्यु हो गया, तो भंडारा हो जाता है। किनका? शेरों का, झोपड़ियों की, लोमड़ियों का, कुत्तों का, वो सब आके भंडारा करते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस? इट कम्स आउट एज poop. Birds eat it, isn't it? So this is maybe gross, maybe not very interesting to hear, but it's the truth, isn't it? तो जो सत्य है उसको समझना, उसको पकड़ना और उसको पकड़कर अपने जीवन को परिवर्तित करना। राजा भी बोल सकता था, अच्छा 7 दिन बचे हैं, खूब डांस देख लूं, मैं तो राजा हूं, मेरे को क्या कमी है, अच्छे अच्छे खाने लाओ, अच्छी अच्छी मदिरा लाओ। ये भी सोच, और कई सोचते भी हैं, जो मूर्ख हैं वो सोचते ही हैं, क्योंकि ऐसा ही जो सोचता है मैं शरीर हूँ, वो तो शरीर की ही रक्षा करता रहेगा ना। He will continue to worry about the body. But people who are enlightened or who have gotten good sanskaras like he did, वो उनके पास भगवान कृष्ण इनके दादाजी के साथ ही घूमते थे, उनके सखा थे। तो ये कृष्ण को बहुत, इसीलिए इनको जब पता, और इसी की जान, प्राणों की रक्षा भी किसने की थी? कृष्ण जी ने ही की थी। विष्णु रथ इनका नाम था, बाद में परीक्षित कहलाए। तो पहला क्वेश्चन था मरने पे हम क्या करें। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और यही भागवत का सार है, क्योंकि ये सबको होगा, ये समस्या परीक्षित की नहीं, हम सब की है। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट शुड ह्यूमन बीइंग्स डू टू प्रमोट देयर अल्टीमेट गुड। उनके लिए जो अच्छा हो वो क्या करें। पहला, एक मरण सन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दूसरा, अपने कल्याण के लिए हम जो सब हमारा अच्छा हो, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता। हे हेतु हान हान उपाय, मतलब कि हम वी ऑल वांट टू अवॉइड पेन एंड वी ऑल वांट टू गेन जॉय एंड प्लेजर। दैट इज आवर नेचर, नॉट ओनली आवर नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, नोबडी वांट्स सैडनेस और पेन। तो लेकिन ये अनिवार्य है, जैसे सत्य है, जैसे दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, घाटा है तो मुनाफा है, ये सब चीजें पैकेज डील के साथ आती हैं। लाइफ है तो डेथ है। सो देयरफॉर the fear of death should go away from our minds. It is no such, it's not a reality. और विष्णु भक्तों के लिए और शिव भक्तों के लिए और जो भी भगवान का नाम लेता है और इतनी पवित्र पूजाएं करता है, उनके लिए तो this is a journey to look forward to. It becomes a joy, it becomes a celebration whenever that time comes. तो भगवान से प्रार्थना ये करो
Jivena Shardasata, may I live to be 100 years. I'm not being, I don't want to go early, don't get me wrong. But if I do have to go, I should not be scared of going. I should go like a warrior, like a brave person. और यही परीक्षित गए भी, क्योंकि मृत्यु का भय चला जाता है। और वही हुआ। अंत में क्या होगा? 7वें दिन तक्षक नाग आके डसेगा ही। आई एम गिविंग यू द सस्पेंस राइट नाउ, क्योंकि कुछ पता नहीं। देखो सनातन धर्म में ये होता है कि बड़े बड़े सीक्रेट्स पहले दे दिए जाते हैं, क्योंकि कल पता नहीं आप आओ कि नहीं आओ, मिस हो जाए तो अभी आपके दिमाग में डाल देंगे तो आपको होगा अच्छा 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 ऐसा भी तो है। तो ये सत्य है। सो वी बेसिकली दे गिव यू प्रोफाउंड फिलॉसफी क्विकली। We don't keep anything in suspense. We say उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, उठो जल्दी से काम करो। तो इस तरीके से ये इनके क्वेश्चंस थे। तो यहाँ से भगवान शुरू करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बातें शुरू करेंगे। और खूब शुकदेव महाराज और सब संत ऋषि मुनि क्वेश्चंस पूछेंगे। परीक्षित जी भी बहुत प्रश्न पूछेंगे। तो वो तो हम सब इतने छोटे समय में हम 7 दिन में नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा संतों का विचार ऐसा रहता है कि जैसे अभी समुद्र है, थिंक ऑफ द ओशन। ओशन हैज सॉल्टी वाटर, यू विल डाई ऑफ थर्स्ट इन द ओशन। इमेजिन वाटर वाटर एवरीवेयर, नो वाटर टू ड्रिंक, है ना। पानी में मीन प्यासी मुझे देखत आवे हंसी, क्या करोगे अब पानी। अच्छा तो अब साधु संत का क्या रोल है भाई, कि वो क्या करते हैं कि समुद्र का जो जल है खारा नमक वाला, उसको वो सूर्य देव भाप बना के उठा लेते हैं। भाप तो थ्रू ऑस्मोस, थ्रू मॉइस्चर, दैट वाटर नाउ गेट्स इनविजिबल। वी डोंट सी मॉइस्चर, you cannot see it. It goes and becomes clouds. From the clouds comes rain. तो वहां से जब वर्षा आती है, अब ओशन तो वही है अपनी जगह, आपको बीच ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन रेन सब जगह आ जाती है और भंडार के साथ आती है। जिस दिन भागवतम था उस दिन भी रेन हुआ था, आपको पता होगा, और उससे एक दिन पहले भी हुआ था। तो जब ऐसे इंडिकेशंस हों तो मतलब भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और इस जगह को आशीर्वाद दिया और बोला कि शाबाश, बहुत अच्छा, ये काम और करो और करो और करो। तो किसी एक इंसान की भी प्रेरणा से कितना कल्याण होता है ये आपके सामने है। तो ये ऐसी बातें होती हैं। और ऐसे ही अब बैठे हुए हैं राजा ज्ञान लेने के लिए। सोचो, भारत का सबसे धनवान, सबसे वैभवशाली, सबसे बड़ा राजा शुकदेव जी के जो 16 वर्ष की आयु के समान बच्चे दिखते हैं, उनके चरणों में बैठा है। Raja is sitting on the floor. He says, that's what I want, and I now know I am not going to die of hunger. I am not going to die of thirst. How does he know? Because the shrap has come. It is Mr. Takshak who is going to come and bite you. Nobody else. He says, I'm not gonna go, so don't worry about my well-being. I'll be okay. सोचो कितना शक्ति है। तो चलिए इसको बढ़ाएं। पहले एक भजन सुनते हैं, क्योंकि फिर इसको हम आगे परीक्षित ने आगे उनको क्या बताया वो डिस्कस करेंगे। हरि ओम। राम मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। राम मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है।
चलिए इसके लिए तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एनर्जी रहता है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों साथ साथ चलने चाहिए। भजन के बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान के बिना भजन और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। इसीलिए सत्संग में जब दोनों हों तो सोने पे सुहागा। बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए कि मरण सन्न व्यक्ति के लिए क्या उत्तम है, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने, भगवान सुखदेव, इन्होंने भगवान की महिमा का गुणगान किया। भगवान द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, कि भगवान क्या है, कैसी चीज़ है। हम दिखते तो हमें है नहीं, तो है कहाँ, तो क्या चीज़ है। कभी हम बोलते हैं अरे अच्छे भगवान है कहाँ, तो क्यों नहीं दिखते, लेकिन दिखते भी हैं कितने लोगों को भागवतम में और बड़े बड़े संतों को, क्योंकि हम में शुद्धता की थोड़ी कमी है। क्योंकि हमें संसार भी उतना ही अच्छा लगता है जितने भगवान। तो दोनों बोट्स अच्छी लग रही हैं, तो एक बोट में बैठने की शक्ति नहीं है, क्योंकि एक छोड़ने लगते हैं तो लगता है अरे कुछ हो नहीं जाए। तो इस तरीके से वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान ने पहले बताया कि देखो सुखदेव जी ने, कि जो भगवान है अवतार लेते रहते हैं रेगुलरली भारत में, और इसमें धरती का कल्याण करने के लिए। और ये देखो गीता के 2 श्लोक भी आपको पता ही हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक भगवान ने बहुत शक्ति के साथ बोले थे कि मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आऊंगा। और क्यों, जो साधु संत हैं उनकी रक्षा हो, धर्म का प्रचार हो, धर्म आगे बढ़े, फॉर राइचियसनेस टू इंक्रीज एंड फॉर इविल टू डिक्लाइन। ये नियम है। तो देन ही कम्स, एंड व्हेन गॉड कम्स तो सब मंगल ही होता है। और उस समय जो एनर्जी है बहुत हाई फ्लोइंग रहता है। तो 5वें छठे दिन हम सब भगवान कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो तैयार होके आना। जैसे हम छोटे बच्चे का बर्थडे करते हैं, कितना एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ भगवान जिसने आपको ये वैभव, ये घर, ये बच्चे, ये सब कुछ दिया है और हर तरीके से आपको सुख दिया है, उनका जन्म दिवस के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हम खुद सोचें। लेकिन आनंद से भगवान के आगे जब हम नृत्य करते हैं तो बहुत शुभ होता है, भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भगवान की ही शक्ति है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं अवश्य आऊँगा और धर्म को ठीक करूँगा। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट वेट फॉर गॉड टू कम कि अच्छा भगवान आएंगे तभी कुछ अच्छा होगा। अभी भी भगवान का अंश, ये धरती भी भगवान का एक अंश है, सूर्य में भगवान की शक्ति है, आप में और मुझ में भी भगवान की शक्ति है। द सेम, हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। तो हम अंश अवतार हैं, वो पूर्ण अवतार हैं। अवतार आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन हमारे अंदर थोड़ा कंटेमिनेशन है, इतना ही सही प्रॉब्लम है। उसको डिकंटेमिनेट करना है हमको धीरे धीरे धीरे। जैसे अब चाय आप बनाते हैं तो छाननी में से छान के देते हैं। अगर आप चाय पत्ती के साथ किसी को चाय दे देंगे वो अच्छी नहीं लगेगी, वो कड़वी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। लेकिन उसकी जरूरत थी उसको पकाने के लिए, उसके बाद छानो। ऐसे ही जब हम ये जो कुछ करते हैं, कई जन्मों के हमारे पुण्य हैं या पाप हैं, ये सब मिक्सचर बन गया है। अब धीरे धीरे इनको छान छान के हमको शुद्ध करके भगवान को देना है।
अपनी भावना, दैट इज प्योरिटी, दैट इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वी आर गोइंग थ्रू। ठीक है, इतना ये हम समझें। उसके बाद भगवान बताते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में मैं हूँ। मतलब कि क्यों मैं ऐसे बोला कि कुछ बहुत बड़ा बात नहीं होगा, कि जब भगवान इस धरती पर आते भी हैं तो वो सीढ़ी को सीधा कर देते हैं। जैसे सीढ़ी टेढ़ी हो गई है या गिर गई है तो अब वो सीढ़ी पे कोई चढ़ नहीं पाएगा, तो उसको सीढ़ी को सीधा करते हैं। चढ़ना आप ही को है, मुझको ही है। अब बोलो सीढ़ी बड़ी ऊंची है, 50 सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ेंगी, चलो, तो फिर कुछ नहीं होगा। दुर्योधन को कुछ नहीं हुआ था, कंस को कुछ नहीं हुआ था, रावण को कुछ नहीं हुआ था, समझ गए? इतनी घृणा थी। तो क्या है कि ये हम ही को अपनी भावना को शुद्ध करते करते उसको प्योर करना है। मीनिंग सेल्फ एफर्ट। डोंट जस्ट से अरे जो मेरा कर्म होगा मुझे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। The more self effort you do, it's like a dynamo. You know how a car drives through the electrical energy जो अंदर। तो आप अपनी मेहनत करेंगे, भगवान की कृपा आएगी। भगवान की कृपा से और मेहनत करेंगे और कृपा आएगी, तो वो चलता चला जाता है and becomes a big momentum of mass. And in the meanwhile you are eradicating all the impurities, मल विक्षेप आवरण सब दूर हो रहा है। छोटी सी एक फनी स्टोरी सुनाते हैं, इसके बाद इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। कि ये अवतार की बात हो रही है ना, अवतारों की बात हो रही है, तो मुझको याद आ गया कि अकबर बीरबल की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हम सुनते थे छोटे थे। तो एक ऐसी ही कथा है, और वो बहुत अच्छे थे। अकबर बीरबल की सब बात मानते थे। बीरबल उनके साले थे, जानते हैं, साले थे उनकी बीवी जोधाबाई थी। शी वॉज अ हिंदू एंड द किंग वॉज अ मुस्लिम। But he was a very cool Muslim, nice Muslim, not radical कि इसको नहीं करना केवल हिंदुओं की ऐसी की तैसी, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बहुत अच्छे राजा थे, राजा अकबर। लेकिन वो बड़े कूली क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे इनसे, बीरबल से। तो एक दिन वो बोले कि यार तुम्हारा ये सनातन धर्म है, हिंदुइज्म है, इसमें भगवान ही भगवान आते रहते हैं, इतने कभी आएंगे कभी कुछ आएंगे कभी कुछ आएंगे, तो ऐसा क्यों है? हमारे इसमें देखो मुस्लिम रिलीजन में तो एक ही अल्लाह है, वो जहन्नुम में मिलते हैं, वहाँ पे हूरे के चश्मे मिलते हैं, ये होता है वो होता है। हमारे तो भगवान कभी आते ही नहीं है, तुम्हारे आते रहते हैं, क्यों? अगर इतने बड़े भगवान है उनको बार बार आने की क्या आवश्यकता? प्रश्न बड़ा गूढ़ था। बीरबल बोला है मेरे को let me answer this in a few days. I am not going to answer you right away. महाराज कुछ दिनों की मोहलत। भगवान राजा अकबर बोला अच्छा ठीक है, हम कुछ दिन की तुमको मोहलत देते हैं। तो अभी राजा के, जैसे अभी आपकी एक छोटी सी बिटिया घर आई है, ऐसे ही राजा का एक छोटा सा, उसकी लड़की का या लड़के का कोई छोटा बेटा था जिसको बहुत प्यार करता था। राजा बहुत प्यार करता था, और वो बच्चा तकरीबन 1-1.5 साल का था, थोड़ा थोड़ा अभी चलना सीखा था। 1-1.5 साल में आई थिंक थोड़ा चलते हैं ना। तो राजा ने, बीरबल ने कहा महाराज ऐसे करते हैं, एक बोट राइड पे चलते हैं, आराम से थोड़ा घूमने चलेंगे, बच्चे को भी लेके चलेंगे, पिकनिक हो जाएगा, फैमिली के साथ गेट टुगेदर भी हो जाएगा, और थोड़ा हम आनंद भी ले लेंगे, घूम भी आएंगे, सारा दिन राजकाज में फंसे रहते हो। तो अकबर बोला हाँ ठीक, बात तो सही है, लेट्स गो। तो अपनी इमीडिएट फैमिली को बुलाया, बीरबल साथ में गए, वो कुछ किया। तो उसके बाद वो छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो बीरबल ने पहले ही इसका उत्तर देना था, बट थ्रू अ डिमॉन्स्ट्रेशन, नॉट बाय वर्बल टॉकिंग। तो उसने क्या किया, उसके बच्चे का ही एक छोटा सा वैसा ही एक पुतला स्टैच्यू बनवा दिया था। तो जब राजा इधर उधर घूम रहा था, पहले उस बच्चे को उन्होंने छुपा लिया, और वो स्टैच्यू को उन्होंने ऐसे फेंका नीचे, तो पानी में गिर गया। तो उसने, अब राजा ने सोचा मेरा बच्चा गिर गया, तो इमीडिएटली अकबर उठ के नीचे कूदने लगा। बीरबल ने हाथ पकड़ा जोर से कि महाराज ये क्या कर रहे हो? कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, पागल हो? मेरा बच्चा गिर गया, मेरा पोता गिर रहा है, मेरे को उसकी रक्षा करना है। महाराज आप तो राजा हैं, इतने लोग हैं, ये छोटे छोटे आपके, ये क्यों नहीं कूद जाते? आप क्यों कूदे? Why did you have to do it? तो अकबर बोला मेरे को समझ नहीं आया, मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए नहीं कूदूंगा तो कौन कूदेगा? बोला देखो, इसीलिए हमारे भगवान बार बार कूदते हैं हमारे लिए, बार बार आते रहते हैं, समझ गए? तुमने अपने बच्चे के लिए, तुमने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूं, तुमने ये नहीं सोचा मेरे पास इतने नौकर हैं, मैं ये कर सकता हूं। अर्जुन के रथ हाँक्यो, रथ हाँक रहे हैं, ये नहीं बोल रहे मेरे को कमांडर इन चीफ बनाओ,
मैं इतना बड़ा ब्रह्मांड मैंने क्रिएट किया, वेरी हम्बल। तो इसलिए ये फिर अकबर हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप ठीक बोल रहे हो, इसका कोई जवाब नहीं है। एंड दैट्स हाउ बीरबल यूज्ड टू आंसर हिज क्वेश्चंस थ्रू प्रैक्टिकल। इसीलिए अकबर बीरबल की जो कहानियां बड़ी प्रोफाउंड है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की भी हैं, लेकिन नॉट इन अ रेडिकल वे। वी शुड ब्रिंग दीज रिलीजन्स टुगेदर, नॉट टू ब्रेक। आवर जॉब इज नॉट टू ब्रेक हियर। अभी आपको बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। That is true religion. It's not about इसमें ये है उसमें वो है। सनातन धर्म में हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसमें सब कुछ है, सगुण साकार निर्गुण निराकार, सगुण निराकार तीनों हैं। अब चाहे तुम उसको आर्य समाज से ले लो, चाहे गायत्री परिवार से ले लो, चाहे आप इसको सनातन धर्म से ले लो, चाहे आप कृष्ण राम से ले लो, हनुमान जी से ले लो, शक्ति से ले लो, बट इवेंचुअली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? Think about that. Go deeper into it. What are you trying to do? Krishna is not different than Hanuman. Hanuman is not different than the Navgrahas. They are all the same but doing different duties as different. जैसे आप एक माँ हैं, बेटी की माँ है, इनकी पत्नी हो गई, अपने नाती जो आया उसकी दादी आजी हो गई और नानी हो गई, और अगर काम करते हैं तो एम्प्लॉई हो गई, और जो भी है इतना कुछ है, और अपने दोस्तों की फ्रेंड बन गई। लेकिन आप कौन हैं? Who are you? Are you the wife or are you the daughter or are you the son or अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो ऐसे ही हम भी ये सब रिलेशंस जो रखते हैं, ये सब तो है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा राता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची जब वो हो जाती है, इट डजंट मैटर हुज व्हाट वेयर। तो ये इसका अकबर बीरबल का आपको छोटा सा जो ये सुनाया है। तो इसमें क्या है कि हमारे भागवत में 24 अवतार बताए गए हैं, बट दीज अवतार्स, एज आई जस्ट टोल्ड यू, आर जस्ट देयर टू गाइड अस। वी स्टिल हैव टू डू इट। सो अभी कलयुग में तो भगवान की प्राप्ति सबसे आसान है, क्योंकि जैसे हम जब छोटे थे तो जैसे क्लास में टीचर एग्जामिनेशन करता था और सबके बुरे नंबर आते थे, तो जब पूरी क्लास फेल हो रही है तो एक और टेस्ट दिया जाता था, बिकॉज एवरीबडी इज फेलिंग। So now what they used to do is, okay, or give everybody grace marks. You will get 10 grace marks. तो अभी ये कलयुग में ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं सबको, कि तुम भाई थोड़ा ही कर लो तुम कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा ही कर लो। मा शुचा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मतलब मेरे पास तो आओ, मेरा नाम तो लो। लेकिन कुछ भक्त हैं जो स्पेशली खिलते हैं आप लोगों में से, जैसे आप लोग स्पेशली इतना समय, जब हम अपना समय निकाल कर भगवान के लिए आते हैं तो एक एक कदम, एक एक अश्वमेध यज्ञ से ऊंचा होता है। तो आप मंडली वाले तो हमेशा ही ऐसे काम करते ही होंगे, कितना बड़ा सुंदर काम है कि भगवान के चर्चा रामायण इस तरीके से आप लगे हैं। तो ये, और आप जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अगर श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता क्या करेगा? वक्ता मतलब हम, श्रोता मतलब आप। आजकल वक्ता की जगह वक्ता और श्रोता की जगह सोता वो सो रहे हैं, वो बक रहे हैं, तो ज्ञान कहां से आएगा? तो जहां पर श्रोता भी शुद्ध हो, भक्त हो, हरिजन हो और ध्यान से उसका आनंद लें, और जहां पर श्रोता भी शुकदेव जैसे हों और वक्ता शुकदेव जैसे हों और श्रोता परीक्षित जैसे हों, तो हम सबको भी यही सोचना चाहिए। इसी भाव से हमको ये भागवत ग्रहण करना चाहिए कि यदि हमें कल भी जाना पड़ जाए तो भगवान के पास ही जाएं, कहीं और नहीं जाएं, उससे जाकर मिलें। मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कोई छोटा बात नहीं है। But nobody will guide you like that. Nobody will talk like we do, because we are not motivated by name, fame, success, this, that. We are here only to give you knowledge. If you like it, you take it. You don't like it, we pack our bags, we go home. क्या है? क्या दिक्कत है भाई? सब अच्छा है, सब भगवान का घर है, तो पूरा ब्रह्मांड उसका घर है। झोंपड़े में वास दे, चाहे महलों में रखे, चाहे हम किसी राजा के पास जाएं, चाहे रंक के पास जाएं, वरना हम सन्यासी के नाम पे धब्बा हो गए। अगर हम इन्हीं चीजों में फंस गए तो भाई संसार ही क्यों छोड़ा? उसी में करते हो। You could have been successful doing what you are doing. So this is a holy path, and on this path, this is why that guru shishya relationship is so sacred. इसीलिए हम अपने गुरु को दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं सब जगह, और उसी का नाम लेके उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज हमारा कुछ नहीं है।
और कल को कुछ नहीं रहेगा। आज से 40-50 साल बाद हम थोड़ा ही होंगे, यहाँ पे कोई और ऑडियंस होगी, छोटे छोटे बच्चे कुछ और कर रहे होंगे, छोटू 5 साल वाला 35 का हो चुका होगा, जो भी है। तो ऐसे ही चलेगा। तो श्रीमद् भागवतम के जो अवतार हैं ये आप सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम इनको नमस्कार करें, क्योंकि भगवान हमारे लिए आए हैं। गॉड हैज कम फॉर यू एंड मी, ही डजंट हैव टू कम। God is not dependent on us, he has created us, but he comes out of compassion, करुणा के कारण, प्यार के कारण, भक्ति के कारण, हमारा कल्याण करने के कारण। जैसे माँ अपने बच्चे को, अगर उसका बच्चा बोलेगा, like if you say to your mom, can you show me how to cook this? She will have so much interest, जितना उनको आता है उससे भी ज्यादा आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, माँ का स्वरूप है। ऐसे ही भगवान जब देखते हैं मेरे बच्चे, मेरे भक्त मेरे पास आना चाह रहे हैं, तो भगवान हमारा हर तरीके से कल्याण करते हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्ति का नियम है। These are rules, these are laws। जैसे आपके ये लॉज बन जाते हैं काउंटी के, सिटी के, फेडरल, all these, much in the same way there are spiritual laws also। तो भगवान बताते हैं कि पहले आए नारायण, लॉर्ड, जो 24 अवतार हैं ये सब विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि विष्णु कौन है? क्रिएटर, प्रिजर्वर। तो ब्रह्मा जी तो क्रिएशन कर दिए, अब क्रिएशन कर दिए तो इसमें मृत्यु लोक बन गया, कोई स्वर्ग लोक बन गया, कोई यम लोक बन गया, कोई गंधर्व लोक। इतने लोकास हैं कि हम गिन भी नहीं पाते। साइंस इज टेलिंग यू द सेम थिंग। हाउ मेनी ब्लैक होल्स, हाउ मेनी सन्स, हाउ मेनी गैलेक्सीज, नोबडी नोस, beyond human comprehension, but there is some intelligence that's driving all this। तो इस तरीके से वो हर रूप में आते हैं। वराह रूप में मतलब बोर मतलब जो सुअर से थोड़ा बड़ा रहता है, उस रूप में आए थे, और उसमें उन्होंने हिरण्याक्ष को वध किया था, और धरती को वो नीचे लेके चला गया था, धरती को समुद्र में, तो वहां से निकाले। फिर यज्ञ, फिर कपिल अवतार में कपिल जी ने अपनी माता जी, देवहूति उनकी माता थी, और वो भगवान के अवतार में आकर उन्होंने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान दिया था, और उनकी माता का साक्षात्कार हुआ था। तो जो सांख्य फिलॉसफी, दोज ऑफ यू हु लाइक टू रीड फिलॉसफी, ये सांख्य फिलॉसफी इन्होंने ही निकाली थी, कपिल जी ने संख्या दी थी कि 24 तत्व हैं, और ये तत्व हैं, लेकिन बहुत ऊंचा ज्ञान है, भागवतम में पूरा है, लेकिन अब वो एक एक चीज को करने में कई घंटे, कई दिन लग सकते हैं। इतना ब्रह्म आनंद का इसमें कल्याण की कारी चीजें हैं कि क्या क्या पढ़े। और फिर दत्तात्रेय जी महाराज, ये भी भागवत के हिसाब से अवतार हैं भगवान के। ये तीनों के रूप लेके आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्तात्रेय जी, और इनके 24 गुरु हैं, मतलब कि इन्होंने सब चीज से कुछ ना कुछ सीखा, और वो भी कथा इसमें है। समय लगेगा तो उसको छुएंगे, वरना कहीं कुछ और बात करेंगे। तो दत्तात्रेय जी महाराज, उसके बाद सनत कुमार, ये 4 बच्चे जो नारद जी के भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, तो ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 5 वर्ष के बालक, ये भी भगवान के ही अवतार के रूप में आए हैं। फिर नर और नारायण अभी भी वो माउंटेन है वहां पर ना, जो आप जाते हो बद्रीनाथ के पास में, वहां पे है, और बहुत सुंदर व्यास जी की गुफा है, शंकराचार्य जी की चीजें हैं, इतना कुछ है, अभी हम कर भी नहीं पाए। 3 महीने हमारे ऐसे निकल गए जैसे 3 दिन। वास्तव में आपको बता रहे हैं कि ऐसे लगता था कि यहाँ तो कई साल रहना चाहिए, तब भी हम पूरा नहीं घूम पाएंगे। लेकिन अंत में क्या करना है? घूमना नहीं है, अंदर जाना है। घूमते रहो, उसका कोई अंत नहीं आएगा। You just close your eyes and find peace within God, and all the तीर्थ yatras and all the divinities are within you. You are the architect of your destiny. That is the essence of spirituality. आप जिस मकाम तक आप लोग पहुंचे हो, सब लोग सक्सेसफुल हो, तो कैसे पहुंचे? क्योंकि आपने संकल्प किया जब आप छोटे थे, what career I want to be a doctor, I want to be an engineer, I should do this, I should do that। उसके बाद कितना आपको तप करना पड़ा to reach there। इमीडिएटली तो डॉक्टर की डिग्री किसी ने नहीं दे दी ना, आपको हक से कमाना पड़ा, उसको मेहनत करना पड़ा। ऐसे ही भगवान के लिए जब हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं, we meditate, we give ourselves, we do सत्संग, तो उससे हम सबका घर्षण होता है। जैसे 2 लकड़ियों को जब आप बहुत फ्रिक्शन से जोर से करेंगे तो क्या निकलेगा? उसमें से आग निकलेगी। जब आप दूध को बहुत जोर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें से घी निकलेगा, दही निकलेगा, मक्खन निकलेगा। All these things will happen, so but they are not visible to the naked eye. Much in the same way, God is not visible to the naked eye, but He is there. So we have to
फ्रिक्शन डालना पड़ेगा, मेडिटेशन, सत्संग करना पड़ेगा, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो फिर पृथु, उसके बाद नर नारायण, फिर ध्रुव, ध्रुव के रूप में आए भक्त। ध्रुव की भी बहुत सुंदर कथा है। और पृथु, जिनकी वजह से ये नाम पृथ्वी पड़ा था, पृथु भगवान की वजह से पृथ्वी बोलते हैं इस धरती को। और उसके बाद ऋषभ अवतार आए, बहुत बड़े थे। फिर हयग्रीव, हयग्रीव वाज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉर्स। तो इसलिए भगवान कभी, फिर मत्स्य अवतार, मत्स्य इज अ फिश, तो वो कभी फिश के रूप में, कभी बोर के रूप में, कभी हॉर्स के रूप में। बिकॉज द गाइडेंस इज दैट गॉड डज नॉट लिमिट हिमसेल्फ ओनली टू ह्यूमन बींग्स, ही जस्ट सेज, कभी नरसिंह के रूप में, नरसिंह में तो बॉडी ऑफ man and head of a lion। तो इस तरीके से he does all these things because he's beyond time and space, he's beyond our limited concepts of saying this is how I expect to see God। He doesn't need to fit into your profile of God। He doesn't have to do what you like to see, he will do what he wants to do। So therefore we have to mold ourselves to his liking, to his behavior। और वो उन्होंने सब में बता दिया है कि तुम भागवतम पढ़ो। अब ये भागवतम तो सबके पास है ही, लेकिन अभी आपको वही बताया था कि जो संत क्या करते हैं, जो वो जल बरसाते हैं, तो वो जब जल बरसता है सब जगह जाता है, और बाय द वे नमक खत्म हो जाता है। नमक नहीं है अब बारिश के जल में, शुद्ध जल है। तो लेकिन आया कहां से था? नमकीन समुद्र के जल से, फ्रॉम द ओशन विच वाज सॉल्टी एंड विच वाज नॉट गुड। मच इन द सेम वे, इफ यू आर नॉट मैच्योर एंड यू रीड दी स्क्रिप्चर्स, यू विल इंटरप्रेट देम रॉन्गली, बिकॉज यू विल से इसमें तो ये लिखा है, कहता है चार जुना, वो चार जुना, च अर्जुन का मतलब होता है एंड अर्जुना, उसमें संस्कृत में श्लोक आता है। कहता है महाराज ये संस्कृत में तो 4 जून लिख रखा है, 4 जून, 4 जून, 4 जून क्यों लिख दिया है? अर्जुन तो ऐसे तो बुद्धि कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब कहता है कि तो इसमें ये कौन है? हम ही मूर्ख हैं, मतलब हम उसको गूढ़ अर्थ को नहीं पकड़ पाते हैं। सो वी हैव टू गो आफ्टर द डीपर मीनिंग। और जब हम साधु संतों का ज्ञान पकड़ते हैं, दे हैव ऑलरेडी कंडेंस्ड इट फॉर अस, गिवन अस द एसेंस। तो मत्स्य, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, हरि, वामन, हंस, धन्वंतरी जी, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, व्यास, बुद्धा और कल्कि। कल्कि अभी आएंगे। तो ये 24, बट वी डोंट हैव टू लिमिट आवरसेल्व्स टू अ नंबर टू से 24 अवतार्स, 10 अवतार्स, all that is okay, but really whenever God is coming in your heart, there उनका अवतार वहां हुआ है आपके हृदय में, तो उसको हमने पकड़ना है। मूल इसमें ज्ञान की बात वो है। तो इस हिसाब से जब हमने ये पकड़ा, तो वी हैव टू से कि अच्छा कौन से अवतार का हम ध्यान करें। तो हम अब ध्यान करते हैं भक्त जो है प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद जो हैं, नरसिंह भगवान, हाँ वो नरसिंह भगवान अंत में आते हैं। तो उसमें क्या है कि ये हिरण्याक्ष को मारा था शुरू में, वरा अवतार के रूप में भगवान आए थे। अब इसमें वो आएंगे जो है नरसिंह को रूप मारने के लिए, नरसिंह रूप में। लेकिन प्रहलाद जो हैं हिरण्यकशिपु उनके ब्रदर थे हिरण्याक्ष के। नर, ये आपने सुना होगा, नर जो हैं जय विजय are the attendants of Lord Vishnu. So they got cursed by Sanat Kumara's once, क्योंकि ये 4 छोटे छोटे बच्चे गए नंग दड़ंग, छोटे से तो हैं, उनको कोई शर्म थोड़ी है, वो कपड़े भी नहीं पहनते क्योंकि संत हैं, ऋषि मुनि हैं। तो जब वो विष्णु वैकुंठ धाम में चले गए, तो ये दोनों उसको कवर करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा छोटे छोटे 4 बच्चों को जो वस्त्रहीन हैं, लेकिन ये बहुत बड़े संत हैं, ये तो नारद जी के भी बड़े भाई हैं और उनको ज्ञान देते हैं, देखने में छोटे हैं। तो जब जय विजय अहंकारवश पहचान नहीं पाए और देख के हंसने लगे इनको, कि जब उन्होंने जब हंसे तो दीज सेंट्स अगेन द वोटर तो उठा लिया कि अब तुम्हारा तो, अब तुम्हें अहंकार चढ़ गया है, तुम्हारे पास पावर ज्यादा आ गया। और होता ही है आजकल पॉलिटिक्स में भी यही होता है, जिसके पास थोड़ा सा भी पावर आता है अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है। अभी फिर जय विजय के साथ भी यही हुआ कि अरे हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं। तो जब सनत कुमार ने बोल दिया, तुम बोला
पानी डाल के कि जाओ तुम अब नीची योनियों में घूम के आओ, क्योंकि तुम्हारा अभी पर्चिंग होना बचा है, तो यू हैव बिकम टू एरोगेंट, यू आर नॉट फिट टू डू दिस। तो अब जब विष्णु भगवान आए तो नारद इन्होंने जय विजय ने शिकायत करी कि महाराज ये बच्चे हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। भगवान ने कहा तो कौन सा गलत बात कर रहे हैं, इनकी बात तो मैं भी नहीं टाल सकता, ये संत हैं। आप क्यों लोग संतों के पांव छूते हो, क्यों आशीर्वाद लेते हो? क्योंकि वी आर द एजेंट्स ऑफ गॉड, representatives. So when an ambassador in India says something, he has the power of the president to say it, isn't it? So God doesn't change anything that a saint has said. तो इसीलिए भगवान ने बोला कि जय विजय को जाओ जाओ जल्दी करो, जो उन्होंने बोला फटाफट कंप्लीट करके आओ। तो उन्होंने बोला महाराज ये नीची योनियों में हमें तो इतना लग्जरी में आप रखे हुए हो, अब हमको जाना पड़ेगा नीचे। तो बोला कोई बात नहीं, तुम जल्दी से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भगवान आपकी याद नहीं कभी छूटे, हम आपको याद करते रहे, वी विल मिस यू वेरी मच। वो भगवान बोले ओके ग्रांटेड, मेरे को याद रखोगे तुम, बट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज यू आर नाउ बीइंग डिमोटेड, यू आर नो लॉन्गर विष्णु पार्षद। अब तुम्हारे को डिमोशन मिल रहा है तो तुम राक्षस बन के पैदा हो गए। तो वो तीन लेकिन उसके बाद सनत कुमारा से उन्होंने उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, महाराज माफ कर दो, गलती हो गया, हंस दिए ये वो। उन्होंने कहा अच्छा। तो संतों के हृदय भी बहुत सरल होते हैं, जैसे भोले बाबा है। भोले बाबा नाराज भी जल्दी होते हैं और खुश भी जल्दी, थोड़ा धतूरा दे दो, थोड़ा सा वो दे दो, ही गेट्स हैप्पी आल्सो वेरी क्विकली। उनका भी हम बीच में जरूर दक्ष यज्ञ इत्यादि का बात करेंगे इन द कमिंग डेज। तो क्या हुआ, उनको फिर 3 रूप में वो आए, शायद आप जानते होंगे। पहला था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, पहला उनका योनि वो था। एंड दे वर बोथ माइटी डीमंस। तो भगवान को दोनों को मारने के लिए आना पड़ा, पहले वरा के लिए और उसके हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार के लिए। और उसके बाद सेकंड जब उनका जन्म हुआ तो वो कौन बने, रावण और कुंभकर्ण। तो वो दोनों के रूप में आए, उनको भी भगवान राम ने फिर सेट किया। और उसके बाद तीसरा जो द्वापर में आए वो थे कौन, ये शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो इन दोनों का भगवान शिशुपाल का सिर काटा था, इस तरीके से उन्होंने उनको भी एंड किया। तो लेकिन ये जो दानव हैं ये सब के सब दे हेटेड लॉर्ड कृष्णा एंड विष्णु सो मच दैट विथ ऑल देयर हार्ट दे हेटेड हिम। उनको और कुछ ध्यान ही नहीं आता था, बस नफरत 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 हर तरीके से। और जब वो मरते हैं, आपने देखा भी होगा, मूवीज में भी दिखाते हैं, when somebody die, और जैसे कोई बड़ा दानव मरता है भगवान के हाथ से, तो उसके अंदर से एक लाइट निकलता है, वो लाइट निकल के भगवान के अंदर जाके समा जाता है, मतलब वो मुक्त हो जाते हैं। तो पीपल से दैट्स वेरी अनफेयर, he was such a bad guy, he did so this, did that, तो why is he getting, हमें क्यों नहीं मिलेगा? अगर तुम इतनी ही तरीके से सिंगल फोकस्ड माइंड से भगवान को जैसे भी तुम चाहोगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने सिर्फ नफरत ही किया, बट ही वाज नॉट इनटू अदर थिंग्स, लाइक कोई उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तो इमेजिन करो अगर आप भक्ति से, प्यार से, रस से भगवान को बुलाएंगे तो कितना आनंद है, भगवान को भी आपको भी। वहां पर वो जैसे टॉर्चर है। अब जैसे जल वही है, गंगा का जल। गंगा का जल जब आप गर्मी में स्नान करते हैं तो कितना मजा आता है, खूब आनंद आता है। यू फील लाइक स्विमिंग एंड यू एंजॉय, द वाटर टेम्परेचर इज गुड। नाउ आई टेल यू इन जनवरी इन फ्रीजिंग कोल्ड गो, इट्स द सेम वाटर। गंगा जल वही है, पानी वही है, थोड़ा सा करते हैं बस 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 हो गया, सबके लिए डुबकी हो गया। एक ही डुबकी, वो भी डुबकी भी छोटा डुबकी, नॉट अ बिग वन, छोटा सा। लेकिन अगर पानी अच्छा होता तो तुम खूब करते, पानी तो वही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हम में क्यों इतना परिवर्तन आया? क्योंकि समय स्थान का फर्क पड़ता है। इसीलिए वो समझ लो, ठंडे पानी में नहा रहे हैं, हम गर्म और स्वच्छ पानी में आनंद के लहरों से एंजॉय कर रहे हैं। और वास्तव में यही होता है। भगवान के जो भक्त हैं वो तो भगवान उनको बहुत बहुत कहते हैं, वो तो मेरे हृदय ही हैं। मैं उनको लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। सोचो, हम बोल दें तो ऐसे की तैसी, कोई बोले कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा ऐसे बोलने के लिए। वो विष्णु जी है, वो बोल सकते हैं, उनके लिए तो उनको अथॉरिटी है ना, तो वो बोल देते हैं मैं तुम्हें लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ अपने भक्तों के लिए। तो ऐसे ये भगवान, तो क्या हुआ, ये ऐसे घर में प्रहलाद जी आए। किनके घर में? हिरण्यकशिपु के घर में।
हिरण्यकशिपु के घर में। अच्छा, हम समय देख रहे हैं तो समय तो अभी बहुत 15 मिनट हैं, तो हम अभी भजन नहीं करेंगे क्योंकि इसको कथा को कोशिश करते हैं समाप्ति पे लाएं। उसके बाद हम भागवत आरती करके आनंद लेंगे, क्योंकि समय का अपना नियम है। दिल करता है कि ये कई घंटे चलता रहे, लेकिन चलो जैसे भी है। बहुत 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 आप लोगों का धन्यवाद है कि इस माध्यम से ये जो गूढ़ ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, उपनिषद, गीता, भागवत, ये सब अल्टीमेटली दे आर ऑल कंडेंस्ड इनटू डिवाइन नॉलेज। जैसे भी लोग भगवत गीता, भागवत, ये सब चीज़ें हमारा बहुत कल्याण करती हैं, बट अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन गॉड, एकम सत्य। तो इस भाव से ये जो हिरण्यकशिपु ने खूब तपस्या किया, इतना तपस्या, क्योंकि जब हिरण्याक्ष मारा गया और समुद्र मंथन में वो चले गए थे असुर, अमृत किनको मिल गया? देवताओं को मिल गया। तो ये जो, तो इन्होंने खूब तप किया। हिरण्यकशिपु ने जाकर जंगल वन में इतना भारी तप किया कि उनके सिर से धुआं निकलने लगा और लोगों की सांसें भी रुकने लगी। तो ब्रह्मा जी को बहुत वरी लग गया कि अब तो ये तो सृष्टि नष्ट कर देगा ये। तो इसको फिर आके उन्होंने बोला क्या चाहिए? बोला कि क्या चाहिए, वो पहले प्रिपरेशन करके आया हुआ था कि क्या चाहिए और ऐसा उसने मांगा, क्योंकि वो बोलते मेरे को अमर कर दो, हर दानव यही बोलता मुझको अमर कर दो, आई वांट टू कीप ऑन लिविंग, आई डोंट वांट टू डाई। तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी, देखो भाई, दिस इज एक्सीड्स माय अथॉरिटी। When you don't have the authority to do something, you can say, okay भाई बड़ा अफसर काम करेगा, हमारे पास, ब्रह्मा जी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। So he says, I don't have the authority to do all that. You can ask for boons, I can give you boons, but I cannot make you immortal. मतलब मृत्यु तो आएगी, अब जैसे मर्जी, अभी हम बात कर ही रहे हैं, परीक्षित को भी आएगी, हमको भी आएगी, तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करें? तो ये दानव बहुत चलाक स्ट्रेटजीज निकाल के लाते थे। अच्छा, मैं बोलूंगा मैं ऐसे नहीं मरूं, मैं वैसे नहीं मरूं, मैं ना, मैं रावण भी बोलता था मैं भालू हूं, मैं केवल इंसान और स्त्री से नहीं मरूं, भालू बंदरों से नहीं मरूं, बाकी दानव दूनव से मेरे को कोई चिंता नहीं है। और किन्होंने मारा? मतलब इवेंचुअली मैं केवल बंदरों से और इंसान से ही मरूं और किसी से नहीं मरूं, क्योंकि उसको ये था कि ये मेरे को कहाँ मार सकेंगे, ये तो इनको तुच्छ समझता था। He would look at them as ants, human beings and bears and monkeys. ऐसे ही हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी आ गए, बोले बेटा क्या वरदान चाहिए? What do you want? He says, I want he didn't say कि मेरे को अमर कर दो। He knew वो ब्रह्मा जी मना कर देंगे, he will not give me। तो बोलता है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना जानवर से मरूं ना इंसान से मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। मतलब ही whatever he could figure in his little brain, उसने सोच के बोल दिया। और ब्रह्मा जी ने भी सोचा, तथास्तु, दे दिया। अब जब वो तथास्तु दे दिया, he became mighty arrogant because now अब सब लोग उससे डरने लग गए, क्योंकि इतना शक्ति उसके पास आ गया। तो उस समय जब वो तपस्या कर रहे थे, इनकी पत्नी का नाम था कयादु। कयादु इनकी पत्नी, किनका? हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयादु। तो वो जब इंद्र वगैरह आ गए पीछे से, इन्होंने जब वो तपस्या कर रहा था, द गॉड सेड गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव देम सम ट्रबल। इनको वो दानवों को हरा हरू के उनका सामान सुमून सब हर लिया, और कयादु को भी उन्होंने इम्प्रिजन कर दिया, मतलब उसको साथ ले जा रहे थे। दे वर टेकिंग हर विद देम बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट। तो उसके अंदर प्रहलाद जी, उस समय नाम तो नहीं हुआ था लेकिन गर्भ में बच्चा था। तो अब वो जब इंद्र ले जाने लगा तो नारद जी, देखो कितना कहाँ पहुंच जाते हैं। नारद जी पहुंच गए दोबारा। ही सेज इंद्र को, व्हाट आर यू डूइंग? बोलता मैं ये इनको ले जा रहा हूँ कयादु को। क्योंकि क्यों ले जा रहे हो भाई? स्त्री है,